Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, how are you? You are in class 9 now. And let's start your first period in English. You know English is an international language and you should try your best to learn it properly. Now we start your first lesson. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance. Now open your book and concentrate on first paragraph. O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. अब देखिए इसका मतलब क्या है। मतलब ये है, ए ईमान वालों, सब्र और दुआ के ज़रिए अल्लाह की मदद तलब करो। दर हकीकत अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। It means that if you want something, for that purpose you should pray, and with positive attitude you should concentrate on your views. By tolerance we mean a fair and objective attitude toward those whose lifestyle differ from ours. Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. The life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a superb example of tolerance. It is his tolerance that let him forgive his worst enemies. Truly, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience, and compassion. The Holy Quran described him as Rahmatul lil Alameen, that is, a mercy unto the whole mankind and universe. अब देखिए इस पैराग्राफ में आप देखिए इसका सिंपल ट्रांसलेशन क्या है। सब्र बर्दाश्त से हमारा मतलब उन लोगों के साथ गैर जानिबदार और ज़ाती मफादात से पाक रवैया है, जिनकी तर्ज ज़िंदगी जिनकी ज़िंदगी का अंदाज़ हमारे तर्ज ज़िंदगी से मुख्तलिफ है। Dear student, concentrate on translation. बर्दाश्त उन्हीं की है जो एक फ़र्द को दूसरे इंसानों की रवैयों, मनफी तबसरों और अफ़आल को तहम्मुल और खामोशी से बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। फिर क्या है, पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा
सब्र बर्दाश्त की एक आला तरीन मिसाल है। यह आपकी बर्दाश्त ही थी जिसने आपके बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कराया। सच ये है आप सल्लम बर्दाश्त, माफ़ी, सब्र और दूसरों के साथ हमदर्दाना रवैये के एक मुकम्मल एपिटोमी मिसाल थे। कुरान पाक ने आप सल्लम को रहमतुल लिल आलमीन, मतलब क्या, सारे आलमीन के लिए, जितने भी अक़वाम है, जितनी भी इंसान है, जानवर है, नबातात है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी सारी इंसानियत और सारी कायनात के लिए रहमत। If you read this lesson, in every para you will understand that the life of Holy Prophet is full of patience. Even he forgave his worst enemies, which is impossible for a common man to forgive. Why? Because he was great. His principle, his method of passing life, and every point of the life of Holy Prophet is a superb example for us. Now we come to your exercise, in which different questions will clarify this view, and you should try to learn it and write it in your notebook clearly and try to understand it properly. Now, your first question is, what does the Quran say about tolerance? मतलब कि कुरान बर्दाश्त के बारे में क्या कहता है। तो अब देखिए, मुख्तसर मैं आपको इसका आंसर इस तरह दूंगा। द होली कुरान से दैट टॉलरेंस इज अ ग्रेट वर्च्यू। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. मतलब ये कि कुरान ये कहते हैं कि आपको हर चीज़ में सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए, टॉलरेंस का मुज़ाहरा करना चाहिए, और ये इतनी अजीम खूबी है, इसकी बुनियाद पर बहुत से मसाइल हमारे लिए आसान हो सकते हैं। फिर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। इसमें क्या कहते हैं? द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंड्योरेंस। एक्सप्लेन। इंड्योरेंस मीन बर्दाश्त। आप में बर्दाश्त का मादा किस कदर था? तो कहते द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद sallallahu alaihi wasallam is a superb example of endurance. He was a perfect example of forgiveness in endurance. He bore hardship at the hands of his enemies. He was mistreated and expelled from his hometown, but he remained calm. He showed tolerance in the face of every unpleasant situation. अब इस आंसर पर सोचिए तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के हालात का किस तरह मुकाबला किया, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मसले को हल किया, और उसका क्रेडिट जो है, उसका सिला हमारे लिए एक बेहतर मिसाल है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ डिड द प्रॉफिट मोहम्मद ट्रीट
the people of Makkah after victory. इन फतह के बाद जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया। सोचने की बात है, जब कोई फातिह कौम सामने आता है तो अपनी रियाया के साथ या अपने दुश्मन के साथ कैसा सलूक करता है। लेकिन यहाँ आप ज़रा इस आंसर पर सोचें। आफ्टर द कंक्विस्ट ऑफ मक्का, द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ordered his followers to remain tolerant. He granted general amnesty to the entire population of Makkah, including his worst enemies. No house was robbed, no man or woman was insulted. इन फतह के बाद आप के साथियों ने किसी घर को लूटा, न किसी की बेइज्जती की, बल्कि सबको आप माफ़ी दी। फिर आप देखिए, ज़रा तवज्जो दें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why was Rabi asking for the repayment dates before the loan was due? इन रबी जो था वो अपने कर्ज को जो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था वो ड्यू डेट से पहले क्यों लेना चाहता था। अब इस बात पर ज़रा सोचिए। आपका लेसन है टॉलरेंस के बारे में, बर्दाश्त के बारे में। तो यहाँ ज़रा देखिए, Rabi was asking for his repayment days before the loan was due because he wanted to test the tolerance of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप देखिए कितनी अजीब बात है। वो लोग भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्दाश्त को आजमाना चाहते हैं, जो इस बात के मतलाशी है कि आप तो है अजीम। तो जब ये खूबी भी देख ले तो चलो हम ईमान लेते हैं। यही रबी थे जो बाद में मुसलमान हुआ। क्वेश्चन 5 की तरफ आइए। What does the tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam teach us? Tolerance of Hazrat Muhammad teach us that we should treat everybody with kindness and sympathy. We should treat even the non-Muslim with kindness in spite of their misbehavior or any harsh treatment. यानी अगर कोई आपके साथ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करे तो आप उसको बर्दाश्त करें। जहाँ तक बर्दाश्त का ताल्लुक़ है तो रिवार्ड तो आपके सामने है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को माफ़ किया तो रिवार्ड कितना बेहतर आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद काइंडनेस ऑन द रबी? रबी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त का क्या असर हुआ? पहले मैंने आपको बताया पहले आंसर में कि बाद में मुसलमान हुआ। तो चलो देखते हैं। सीइंग द काइंडनेस एंड ग्रेट टॉलरेंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Rabi immediately gave up the religion and embraced Islam. आपने अपना रिलीजन जो था वो इमीडिएटली आपने उसको छोड़ा, उसको गिव अप किया और इस्लाम को एक्सेप्ट किया। अब देखिए इस आखिरी क्वेश्चन में आप इस सबक की समरी को अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें समरी है, मेन पॉइंट्स है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन you will be able to understand the whole lesson. अब आखिरी सवाल क्या है? What is the main idea of the lesson? इस लेसन का जो है वो खुलासा क्या है, मतलब क्या है? तो सुनिए, the main idea of the lesson is that Islam teaches us patience, tolerance, humility and good behavior.
The life of the Holy Prophet is the best example of tolerance, forgiveness, and compassion. We should follow the teaching of our Holy Prophet. Indeed, if we do it, we will be the nation on which the coming generation will feel proud. Now write these sentences in your notebook. Try to understand each and every point. And if you have any difficulty, then you will ask it in next lecture.